Record and transcribe. Yeah. Start over here. Yeah. Right. So, sir, I'll just show you like 1.5 minute demo video. उसके बाद में I will quickly walk you through the slides, and then I will finally come to the product demo. Okay. Okay. Can you hear the sound also? Yeah. Okay. Compliance is the biggest challenge faced by most of business and professionals. Monitoring risk and compliance is becoming more difficult due to frequent changes in rules and regulations. Non-compliance costs are increasing in the form of fines, penalties, and litigation. Warm welcome to ComplyAny, world's first total compliance monitoring system. This is a must tool for every successful business heads, CEOs, and CFOs of every type of business, whether small or big. This works with you as your virtual compliance officer. ComplyAny's Compliance Score Report is a one-page, easy-to-understand report. It gives compliance score of your entities and departments. If you are a professional user, you can also see compliance score of your partners. You can also check monthly trend of critical and non-critical compliances. It takes only 1 hour to implement, 2 minutes to set up new compliance, and 1 minute to comply. We have already defined most of your daily use compliances in our system. You just need to select compliance applicable to you. Our system is automated for any due date change announced by government or authorities. You don't need to remember or track it. Apart from compliance, ComplyAny also has soft copies of commonly used laws and regulations with brief summary for easy understanding. And new government notifications. Circulars are also available with analysis of impact on industry. You can use ComplyAny mobile app for monitoring on the go. It is also super easy for completing compliance. Just select date, take picture of evidence, and save. We urge you to become compliant citizen. You will also be able to save non-compliance cost by up to 75%. So this was a small demo video. I'm just Okay. sharing my screen for presentation part. So I will not walk you in detail, but give you less glimpses of what is the compliance importance. Since you Sure. are already using compliance system, so most of the things you will be aware of. Just okay. इसमें सारे लॉज है ना, सेंट्रल स्टेट लोकल लॉज. सही बात सर. आप मतलब आप लोग इन्वेंट्री हम लोग लगाने जाते हैं ना, सो वी वर थिंकिंग कि अब सिर्फ 1000-1500 कंप्लायंस होंगे. जब बनाने लगते हैं तो कई बार 15-20 हजार कंप्लायंस तक पहुंच जाते हैं हम लोग. सो सर ये कंप्लायंस नीड को आपको ब्रीफली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द टॉप मैनेजमेंट हु वांट्स देयर कंपनी टू बी 100% compliant all the time. Then we have the directors who want to get the compliance report at the board of directors meeting. And third, we have the shareholders who don't want to get any bad news, which can trigger down their wealth in the stock market. On the right hand side, we have the auditors who want all the evidences to be available at one place at the time of audit. Then we have the investors who don't want to fund fine penalties and litigation cost. And lastly, we have the customers who don't want to work with the company who are accused of non-compliances. Sir, okay, कि जहाँ पे आपको कुछ लगे डिस्कशन करने के लिए, I will be happy. Sure. Yeah. So non-compliance like is one of the biggest problem nowadays for the all business, whether it is a small business or very big giant business. There is no visibility of all applicable compliances in a organization like company like you. You have the multiple location, multiple legal entity, multiple business segments. So it's very difficult to consolidate all these requirements applicable to your organization. Then people depend on Excel sheet based system. Although you had this KPMG system, but 90% of the people are follow this Excel sheet based system. Then bigger issue in case of multiple legal entities, multiple locations, and increasing compliance application, but limited resource. One side government is saying they have reduced 40,000 compliances, but those 40,000 compliance has never been used in the businesses. So in other words, like it is increasing day by day. And one more important thing is what not aware of is not an excuse nowadays. Just for a moment. Yeah. So second largely like government is charging faster to catch the defaulters. Like government is having like GST number, PAN number, Aadhaar number. So before like organization come to know any not default, they will get the notice from the government. And lastly, it's like non-compliance also comes with the like fine penalties and goodwill loss. Why do you need compliance monitoring system to know organization-wide compliance status? skip कर सकते हैं इसको. Skip कर देते हैं, ठीक है. इसमें आता है ComplyAny में. इसमें like I will give you more detail while I will walk through the system itself. So just a single page and easy to understand dashboard reporter and compliance scores and compliance certificates are automated. AI enable faster implementation. We can implement like organization like you in 4 to 5 weeks time.
And it also facilitated to maintain like bank guarantees, agreements, legal cases, insurance, notice, NOCs, etc. Many times people receive the notices, but skip it. So this system also facilitated to all monitor all these things. An automatic update of revised due dates. And it's a global system. We have customers in about 21 countries. And GST compliances are automated. If you're registered in like 10 or 15 states, so no input is required for GST compliances. It will be automatically updated in our system from the GST portal. Then the security files like data is end-to-end encrypted. ISO 27001 certified. We are also GDPR compliant. Reminder escalation, notification circulars, quick user change. I will also skip this slide. Last things are not very important. So it's like we cover like everything and anything in the compliance field. We cover the standard compliance, income tax, GST, labor law, pollution law, and industry specific compliance. If any like laws applicable to wind industries or chemical industries, that will be covered. Then the governance compliance, you have like many agreements, AMCs, notices, legal cases, bank guarantees, and insurance. Everything can be managed in the system along with the details. So like once you have the detail this system, then you don't need to maintain any separate Excel file for any details which you require on day-to-day basis. And lastly, the location is specific. Like some states are having like professional tax. Some if a plant is located in more remote area, then maybe like Gram Panchayat compliances. Then this is our platform. Only one-time implementation is required in the website or desktop. And going forward, the person who is monitoring it can do via mobile app, and the person who is supposed to complete the compliance, he can also complete the compliance via mobile app. It takes only 30 seconds time to complete the compliance. And our system is approved by Institute of Chartered Accountant of India, and we are also incubated by Software Technology Park of India. So we have the startup registered under and supported by STPI in India. These are some of the like few customers. Ramki is based out of Hyderabad. We have implemented 16,000 compliance. We covered 71 entities. And when we implemented, nobody is traveled from Hyderabad to Delhi, and nobody has traveled from Delhi to Hyderabad. And Wave is based out of your maybe like your neighbor. They are into real estate, and they have 4 sugar plants located in Uttar Pradesh. They have steel cinema. They have about 16 cinema halls, malls, and food courts. Idemia, I was talking about this multinational company. So we are providing 100% compliance for their Asia Pacific and Middle East units. So we are covering 21 countries. Competent, you must be aware of. They have 48 showrooms across North India. REC is a chemical manufacturer. Chemical manufacturer कोई भी नहीं है, but indirectly we can say like sugar plants they have. They also have like what do you call it? Distillery, correct. Impresario, they operate social brand of restaurant because India they have 58 restaurants. Lexicon is a steel manufacturer. Pharma is like Vanvaris Pharma company based out of Mumbai. VNR Luxury Govan Villa. Baker Circle, they supply OEM foods to Domino's and Pizza Hut. Quintus Global is like they are doing the BPO and KPO for GTV and Lenskart. Amita is German company. Linksens is French company. Graphics is a small IPO company. Javeri. Flexo is packaging based on Mumbai, and Signmake is an international CA firm. There are top 20 international CA firm, BPO, Boxman. So in short, we cover most of the sectors. Our customer across India is the global system, and we cover from a small company to large company. We also cover business and professionals. So this was a small brief about the system. And any question, Okarji? No, good. Okay. So I'm moving to my like second part of the presentation is the like demo of the product. So this is the login window, and every company will have one unique ID. Yeah. Just a minute. I'm switching on the window. Yeah. I hope you can see now. Yeah, this is the login window. And login window have like one customer ID, and each individual will have their own ID. So once we log in, we land into the dashboard. ये सिंगल साइन ऑन ये अच्छा चलिए ठीक है उसमें बाद में आते हैं. So in dashboard is having 2 parts. One is like first part is like entities part. Whatever the entities meant it covers legal entity as well as your plants. Suppose in one entity you have like 4 or 5 plants. So wherever you want to monitor the compliance, we create as an entity. So maybe like plant 1
one entity, plant 2, second entity, and they all may be combined into one legal entity. So all these entities will be listed on here. I will give you more detail. These are the entities. So these are the entities like Gujarat, Haryana, wherever you are. So in this case, the total number of compliance applicable to this entity for this period is 1348. And compliant are 1061. Compliant means if the compliance due date is like 6th or 7th of the month for the TDS. If TDS is deposited on 7th, 5th or 6th, it will be treated as compliant. If TDS is deposited on 8th, it will be treated as non-compliant or delayed. And no action, if no action has been taken, it will remain as overdue. So you will never miss any compliance under the system. So unless somebody goes into the system and complete the compliance, it will remain to be showing as a overdue compliance. And you can click on any of the numbers to see the details. Like I will click on this number 648. So 600, this is the detail of 648, which are compliant. Compliant means the compliance has been done on or before due date. I was explaining you that GST compliances are automated. So wherever you find the font color in green, it means our system has went into GST portal and take out the actual compliance data of our GST customers, along with the ARN number also. This is the AR acknowledgement reference number, we call it ARN number. So this is the same way. This is like overdue detail. Like this is compliance was due on 15th of September. So we can complete on 15th. So it will be like 0 days. Suppose we are completing the compliance on 17th. It means 2 days late. In case of late, I'll have to give some remarks. Like HOD was on leave. And I also have option to attach 5 documents. Whatever the evidence I want to attach it, I can attach along with this compliance and save it. So this was not compliant. So non-compliant become now 33. So this is the way how this like first block of the report is prepared in the system. And total 1348 compliance has been split into various departments like HR, company secretary, finance, IT, whatever the departments you have, we can create those departments in the system. And the company who is doing their like our department which is doing their job perfectly are also being allocated as a gold medal. Like in this case, EHS is doing their job perfectly. I will give you some filters like here the filters, various filters are there. So you can select various filters in the dashboard itself to see the reports. So these are the user-wise reports. So all the users will be listed down here and how these users are performing in their compliances. So many of our company, many of our customers have put this compliance monitoring system in their annual appraisal cycle. So they have allocated about 15 to 20% of weightage for this compliance monitoring system. So this is like this will like inculcate the compliance culture in an organization. And you have like different filters, like suppose as a IT head or as a MD, you don't want to see any entity detail. So you can see all these details like group wise. So this is the demo group. Only this like this is the compliance are there. Then various filters are there. Like if you want to see any particular department, any particular law or compliance type. So you can get all these filters in the dashboard itself, plus the period filter. Suppose you want to see for the financial year, quarter, month, whatever the day you want to see, you can see it here. So most of the things after implementation can be done via dashboard only. So don't need to like go into details for the like normal HODs. And there are like critical filter or non-critical filter. You can define it. Suppose it is like related to law, it can define as a critical. Suppose it is normal, you can or your own internal governance compliance, you can define as a non-critical, depending on to you. And if you want to see only the non-compliant, so you can also see the list of non-compliant compliances. One more important like report I would like to show you here. Like here we have the like CXO report and the compliance certificate. And the CXO report, I will give you the like detail, like I will just give some filters. So this is like a complete one-pager report for the MD and the CEO. This will have the list of all the laws applicable, like 28 laws are applicable. And this is the total number of compliances. This is the compliant status. This is the delay and overdue. And this can simply be like downloaded into a PDF file and can be sent to the HODs or MDs, wherever you want to circulate it. So this is like very most used compliance report in our system by our users. Then another report we have, we call it the compliance certificate. So system also generate compliance certificate for each individual user and each company. Suppose your legal guy is there, and legal guy will be more like interested in knowing the
compliance certificate based on the legal entity. So legal entity wise compliance report will be generated here. So like the Okay. demo one entity is there, these 4 laws are applicable. And suppose you want to see the detail also. And what is the beauty of system? You can also submit this compliance certificate via email. You just need to click the submit button and email will go automatically from the system in the PDF file. Okay. Suppose somebody wants to see the detail, like what is the detail of all these compliances. So an Excel is there. So what are the task details and what is the compliant or non-compliant status. और इसको compliance का update करने के लिए is there a workflows maker and checker kind of things? Maker checker, we have like have the maker checker sort of things, but none मतलब of किसी our ने customers. अपडेट किया तो कोई उसको अप्रूव करेगा देख के कि हाँ इसने सही कंप्लायंस को मतलब क्लोज कर रहा है वो कि मैंने ये कर दिया कंप्लायंट कर दिया. करेक्ट. तो हाउ हाँ सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन मैनी केसेस वी हैव सीन वेयरएवर मेकर चेकर सिस्टम इज देयर. तो उसमें क्या हुआ, नीचे वाले बंदे ने काम तो कर दिया, अब मैनेजर के पास टाइम ही नहीं है, तो जब तक उसके पास वो मैनेजर आप अपना वहां पे कंप्लीट नहीं करेगा वो रिमेन एज ए नॉन कंप्लायंट. So many companies we have seen where the compliance system has failed just because of this maker checker, and one more like company is having internal auditor. So after maker there is one like manager, after manager there is an internal auditor. So they it's like culture, they don't believe in anybody. And the person like you will find only one person in 1,000 who is not doing his job honestly or with a full integrity. And for one person to penalize 999, I don't think it make any sense. But you have the option to inbuild the maker and checker in the system also. Okay. Yeah. So this is like compliance certificate, and I will give you like few more details like about the notification system. So all these notifications are updated in the system in 24 hours time. Like this is the notification of SEBI. Any change in the compliance it comes automatically? Automatically How updated. soon you update that? Within 24 hours, all the applicable compliance will be inbuilt into the system. And we are suppose any like NBFC company is there. Any if RBI issues any circular related to NBFC and new compliance is being introduced. In those cases, we also connect our RM Connect one-to-one to those companies for implementation. And you see, you have the two option, like if you want to see the document only, so you can select the document. So this is the document like SEBI document. Suppose it's too lengthy and very difficult to understand. In those cases, we are also giving our analysis in layman's language. So easily can be understood by the normal person. What is this notification meant for? So this is the like, and I will also give you like show you how we are making the like implementing the law. So in system we have 3 type of law. Like one is the standard law where the government has defined due dates. Like 7 तारीख को टीजे जमा करवाना, 20 तारीख को जीएसटी जमा करवाना, 15 तारीख को पीएफ जमा करवाना है. तो मान लीजिए आपका कंपनी कैसे ले, जैसे किसी कंपनी मणिपुर में है, वहां पे दंगा हो गया, तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी डेट वहां पे जीएसटी की. So those dates, extended date will be automatically updated in the system. So user don't need to remember or track it. सेकंड कंप्लायंस सर हमारे पास है मैंडेटरी कंप्लायंस, जहां पे गवर्नमेंट ने कंप्लायंस तो मैंडेट बाय द लॉ है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई डेट डिफाइन नहीं की हुई है. जैसे आपको लेबर के रिकॉर्ड बनाने हैं, कोई डेट नहीं है. आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी साल में 4, लेकिन डेट कोई डिफाइन नहीं है. शेयर होल्डर का रजिस्टर बनाना है, कोई डेट डिफाइन नहीं है. तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारा क्लाइंट होता है उससे पूछते हैं, भैया हाउ डू यू वांट टू फिक्स द ड्यू डेट्स. सम कंपनी सेज it's like do it monthly basis, some company says half yearly, some company says quarterly. Based on their input, we define all these compliances. And third compliance we have the governance compliance. इस compliance के अंदर सर आपकी जितनी भी organization से related compliances होगी ना, सारी कवर हो जाती हैं इसमें. तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे. जैसे एक डेमो कंपनी मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल है, इसमें वर्कफ्लो है कि नहीं है, फर्दर टाइमिंग में सेलेक्ट हूँ, वर्कफ्लो नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लायंस टाइम सेलेक्ट करूंगा एग्रीमेंट. इनकेस एग्रीमेंट अगर लीगल केस सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकेस लीगल केस, सो लीगल केस का जो डेटा होता है वो पूरा आप यही मेंटेन कर सकते हो, अलग से आपको कोई एक्सेल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पार्टी कौन है, सेकंड पार्टी कौन है, कंप्लायंस केस का नंबर क्या है, उसका एडवोकेट कौन है, हमने क्या सबमिशन किया हुआ है, वो सारा यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा. तो कोई भी एक्सेल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है. सपोज आज आप 17 सितंबर आज आपकी कोर्ट की डेट है, वो दूसरी पार्टी नहीं आई, तो कोर्ट ने बोल दिया कि आप 17 अक्टूबर हो गई है. सो रिवाइज डेट हम सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं 17 अक्टूबर, एंड वी कैन आल्सो अटैच एनी लाइक सबमिशन डन बाय द अनदर पार्टी. So this way we can maintain the data for like agreement का सारा डेटा ये मेंटेन हो जाता है. आपको अलग से कोई फाइल, अभी आपके ये जैसे एमसीज होंगे कंप्यूटर के, लैपटॉप्स के, वो सारे डेटा ये मेंटेन हो जाएगा. सेम वे यू हैव द लाइक बैंक गारंटी. बैंक गारंटी लोग क्या कई बार जमा कर देते हैं उसमें गवर्नमेंट के पास, लेकिन खुल जाते हैं. फिर बाद में जब उसकी जब इनकैशमेंट के लिए बैंक के पास चला जाता है तब उनको याद आता है कि ये बैंक गारंटी दी हुई है हमने.
और कई बार जैसे आपकी जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, पेरेंट कंपनी इशू कर देती है बैंक गारंटी छोटी कंपनी के लिए। उसमें होता क्या कि छोटी कंपनी के बुक्स में तो आता नहीं वो, छोटी कंपनी उसके लिए ध्यान रखेगी नहीं, तो ये इस तरह की चीजें मिस आउट हो जाती हैं कई बार। तो मैं यहाँ पे आपको एक अदर कलर कमांड बना के सिखाता हूँ। सिंपल एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है, डिपार्टमेंट के बाद कोई सब डिपार्टमेंट, उसके बाद हमने यूजर सेलेक्ट कर लिया। सपोज आपके जैसे आईटी के आप हेड हैं, कोई कॉर्पोरेट के हेड, आपके मान लीजिए आपके अंदर 50 आईटी के मैनेजर्स हैं डिफरेंट कंपनीज में, तो एक सिस्टम आपको फैसिलिटेट करता है कि आप उन 50 लोगों का नाम एक साथ सेलेक्ट कर लो। आपको अगर कोई मंथली रिपोर्ट चाहिए, 50 लोगों का नाम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उसकी कंप्लायंस बना दी कि आपने वो लिख दिया कि आईटी इंसिडेंट रिपोर्ट ये आपको हर महीने वो लोग भेजते रहेंगे रिपोर्ट। इसमें एक वो बन जाएगा इनका एक कंप्लायंस। और आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि इसको आपको हर महीने की किस तारीख को चाहिए। आपने बोल दिया कि हर महीने की आपको 3 तारीख को चाहिए ये वाली रिपोर्ट अपने एचओडी से, और आपने डिफाइन कर दिया आपको कंप्लायंस किस डेट से इंप्लीमेंट करना है, वो आपने सेव कर दिया। इसके बाद सिंपली आपने इसका डेट वर्किंग है फिक्स्ड है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक कंप्लायंस है तो उसमें वर्किंग डेट सेलेक्ट करोगे। अगर 3 तारीख को कोई सैटरडे संडे या हॉलीडेज आता है तो उस केस में वो स्किप कर जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे ड्यू डेट बनाने के लिए। कंप्लायंस का नेचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये मीटिंग है, आईएसओ क्या चीज है। फिर आप अटैचमेंट ऑप्शनल है, मैंडेटरी है। तो अगर आप मैंडेटरी कर देंगे तो जो रिस्पॉन्सिबल यूजर है उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे जाकर अटैचमेंट लगाना पड़ेगा एविडेंस का, सो दैट कि बाद में एक साल बाद जब कोई ऑडिट हो तो उसका एविडेंस यहीं से मिल जाए, आपको कोई फाइल ढूंढने की जरूरत ना पड़े। एंड द सिस्टम बाय डिफॉल्ट गिव्स 3 रिमाइंडर्स 0, 1 एंड 2। जैसे आपकी 7 तारीख की अगर ड्यू डेट है तो सिस्टम आपको रिमाइंडर देगा 5 को, 6 को, 7 को रिस्पॉन्सिबल यूजर को। अगर 7 तारीख को काम नहीं हुआ है तो 8 तारीख को उसके मैनेजर को एस्केलेशन बन जाएगा। अगर 8 तारीख को काम नहीं हुआ है तो 9 तारीख को एस्केलेशन मैनेजर को जाएगा एस्केलेशन, अगर हमने डिफाइन किया हुआ है। बट इन केस लाइक एग्रीमेंट इंश्योरेंस आपको लंबा रिमाइंडर चाहिए, 15 दिन पहले चाहिए, 30 दिन पहले चाहिए, 45 दिन पहले चाहिए, तो अब यहाँ पे आप लंबा रिमाइंडर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आप ये 100 कंप्लायंस करोगे तो आपने 3 लोग हमने सेलेक्ट किए तो वहां पे 3 लोगों की ऐसा कंप्लायंस बन गई यहाँ पे। हम रिव्यू करेंगे और डन। सर इसमें लेस देन ए मिनट हमको टाइम लगता है कंप्लायंस सेटअप करने में। सो दीज आर लाइक ब्रॉड फीचर जो, और मैं यूजर मैनेजमेंट आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूजर छोड़ के चला गया, अब नया बंदा आया उसकी जगह, तो जितनी भी ओपन कंप्लायंस होती हैं पुराने यूजर की, वो सारी जस्ट क्लिक ऑफ ए बटन विल बी रिप्लेस विद अ न्यू यूजर नेम। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, या कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको। और प्रॉक्सी यूजर मान लीजिए आपके पास कोई बंदा मेडिकल लाइफ में चला गया, कोई मेटर्निटी लीव में चली गई, और आपको चाहिए कि आप वो जितने भी कंप्लायंस उस बंदे के थे पैरेलली किसी और को राइट देना है, तो प्रॉक्सी यूजर के थ्रू आप वो भी हैंडल कर सकते हैं हम यहाँ पे। और आपको एक चीज और दिखा दूं सर, इसमें यहाँ पे हमारे पास वर्कफ्लो कंप्लायंस है जो मैंने स्किप कर दिया था। जैसे आपके पास कोई भी अगर टास्क है जो वर्कफ्लो बेस्ड है, जहाँ पे 5-6 लोगों ने काम करना है, एक का काम दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे बोल दूंगा वर्कफ्लो कंप्लायंस है। वर्कफ्लो में कितने कंप्लायंस यहाँ पे इसमें स्टेप है, 5 लोग काम करेंगे, 6 लोग करेंगे, ये सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि उन सबका काम क्या क्या है। बहुत सारे वर्कफ्लो हमने अपने आप सिस्टम में बनाए हुए, जैसे रिक्रूटमेंट का एक वर्कफ्लो है, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टैंडर्ड है कि पहले सीवी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे, ऑफर लेटर देंगे, फिर उसका अपॉइंटमेंट होगा। तो कुछ एक जो वर्कफ्लो हो गए हमने सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। तो जैसे ये वाला ये आपको दिखाया है मैंने वर्कफ्लो का, तो इसमें आगे जैसे वर्कफ्लो, तो क्रिएट वर्कफ्लो में आपको जैसे 7 लोग हमने सेलेक्ट किए थे, 7 लोगों का हम नाम डाल सकते हैं यहाँ पे कि उनका काम क्या क्या है। तो और उसकी ड्यू डेट भी बन जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ 2 टाइप की ड्यू डेट्स हैं, वन है फिक्स्ड है, एक है वर्किंग डे। तो फिक्स्ड केस में क्या होगा, आपने सिर्फ काम नंबर ऑफ डेज अलॉट कर दिया कि मान लीजिए पहले वाले स्टेप में 2 दिन लगेंगे, दूसरे वाले में 4 दिन लगेंगे, तीसरे वाले में 5 दिन लगेंगे। तो दोनों तरीके से काम यहाँ पे हो सकता है वर्कफ्लो में सर। राइट। सर यहाँ पे मतलब कि यू कैन थिंक ऑफ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो बाय डिफॉल्ट में सर आपको इंट्रोडक्शन देना भूल गया। आई एम आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। I worked as a CFO in many multinational company in India and about 7 years in Dubai. अच्छा। So सर मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है पूरा मैंने सिस्टम में डाला हुआ है। अब ये जो आप वर्कफ्लो बता रहे हैं ये कंप्लायंस के लिए, किसी को बोलने के लिए, लेकिन जो अब कंप्लायंस जो स्टेट के लोकल वो जो आ रहे हैं वो तो अपने आप ही आएंगे ना? अपने आप ही आएंगे डिफाइन, वो तो स्टैंडर्ड आपको इंप्लीमेंट करके देंगे सर हम जिस टाइम हम ये ऑनबोर्ड करेंगे आपको। ये जो है ये बेसिकली रिपोर्ट ये किसके लिए है? ये जो आप गवर्नेंस कंप्लायंस है। गवर्नेंस आप कंप्लायंस। ओके। एक बार इंप्लीमेंट हो गया सर, मान लीजिए बीच में आपने कोई रिपोर्ट स्टार्ट करनी है जो आपको सारी एचओडी से चाहिए, तो आपके 2 ऑप्शन है, आप पहले से हमें बता दो, हम डिफाइन कर देंगे इंप्लीमेंट के टाइम में, या कि बीच में कोई अपना कोई नया प्रोसेस आ जाता है तो आप खुद भी कर सकते हो उसे आप। ओके। ठीक है। सिर्फ पंकज,
सो यहाँ पे आप फिर कंप्लीटली आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट वाला है ना वर्कफ्लो से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सर हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट वही मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैनेजमेंट वाला पूछ रहा था कि वो हाँ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के और लिटिगेशन के लिए आपके पास अलग टूल है या इसी सर टूल ये में ही करते हैं? लिटिगेशन में आप सिर्फ मतलब लिटिगेशन का ऑलरेडी सर ने दिखाया था शायद, उसमें हाँ एक बार फिर से सर हाँ लिटिगेशन में हाँ, आप वो उसमें लिटिगेशन में सारे मतलब कि वो केसेस, हाँ हाँ ट्रैक कर हाँ, सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। यस सर उसमें आप सब कुछ आपको सर 90% क्या होता है लिटिगेशन में, आपको क्या चाहिए होता है लिटिगेशन में, आपका केस एक जगह पे हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट हाँ सारा फ्लो एक जगह हो जाए, ठीक है। हाँ हाँ। और एक जो रहता है उसमें डेट चेंज आता है, वही है, क्योंकि सर आई डोंट थिंक सो कि आपके पास बहुत सारे लैंड लिटिगेशन के लिए तो कुछ होगा नहीं, सिविल मैटर्स हम्म होंगे। हम्म। सिविल मैटर सर कितने होंगे वैसे, मतलब जस्ट इन केस यू कैन। नहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं, लीगल एड को मालूम होगा। ठीक है, सर मैं तो बहुत आईटी ज्यादा से नहीं हूँ। होंगे तो आप यहाँ से 90% मैनेज कर सकते हैं। और सर हम्म। कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें क्या है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो एनडीएस आते हैं उसमें मतलब 90% में जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया और आपने उसको वैलिडेशन के लिए भेज दिया, साइन करके एक जगह पे रिपोजिटरी बना दी, तो तो वो सर ये वर्कफ्लो में। मैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में ये पूछ रहा हूँ तो कि ड्राफ्टिंग वगैरह जैसे होती है कि भाई अगर मैंने कुछ ड्राफ्ट किया हमारी लीगल टीम ने, फिर क्लाइंट को या वेंडर को वो उसको ड्राफ्ट को मॉडिफाई, तो वो ऑप्शंस हैं आपके इसमें? वो नहीं, सर वो प्रोसीजर पार्ट ड्राफ्टिंग। इसमें कवर नहीं होगा कि ड्राफ्टिंग में कौन कौन से लैंग्वेज होने चाहिए, अच्छा, कौन से क्लॉज होने चाहिए, कौन से ओके। नहीं होने चाहिए, नहीं नहीं, वो सर यहाँ क्लॉज पे कवर होने नहीं चाहिए होगा। नहीं है कि ड्राफ्टिंग होता है कि भाई आप वर्ड में उसको ड्राफ्ट करके भेज रहे हैं, इसी के थ्रू वर्कफ्लो में उसके पास जा रहा है, फिर वो उसमें हाँ कुछ चेंज कर रहा है, वो मुझे नजर आ रहा है, फिर मेरे लीगल करेक्ट। ने करके फिर रीइटरेटिव, मतलब ड्राफ्टिंग का फीचर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है, तो वो हाँ सर आप बिल्कुल वाले होता में है, शायद नहीं। बट वो 90% केसेस में सर गूगल जो ड्राइव यूज करते हैं वही वाला फंक्शन यूज करते हैं। हम्म। गूगल ड्राइव में मतलब डॉक शेयर करके मतलब ऑप्शन से वो वाले फ्लोज लिंक यूज करते हैं। तो हम सिक्योरिटी रीजन से कुछ कुछ जगहों पे हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड सर, बिकॉज सिर्फ नहीं नहीं, गूगल का डॉक नहीं शेयर में होता है, वो फीचर सॉफ्टवेयर में ही होता है कि भाई सर वर्ड वो जो जाता है वाया एम्बेडेड वाया होता वो। है उसमें। यस सर, बट ये फंक्शन हमारे पास एज ऑफ नाउ नहीं है। सर वो एक जैसे स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती नहीं, जैसे डाकू साइन वाली फॉर्म है, तो उसमें आपको हाँ, पूरा फीचर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट सिग्नेचर तक का, लेकिन वो फीचर अब यहाँ पे नहीं है। नहीं नहीं, डॉकू साइन वाला तो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, मैं समझ हाँ गया, हाँ मैं समझ गया। हाँ हाँ ठीक है, correct। फेयर एनफ। तो मतलब कि लिटिगेशन का इसी में ही जो केसेस वगैरह हैं उनका हाँ गवर्नेंस हो सकता है यहाँ, इसके आपके करेक्ट गवर्नेंस करेक्ट कंप्लायंस से। और करेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है उसका भी गवर्नेंस से ही यहाँ हो से हो सकता जाएगा। है हाँ कि, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो हम उसको अटैच करके रख सकते हैं रेफरेंस रख के लिए, सकते हैं बिल्कुल। सर है ना, ऑल्सो फाइनल। ड्राफ्ट कर सकते हैं सर, आप अलग अलग लेवल पे मेल ड्राफ्ट मेल वेल में वर्कफ्लो पहले में। ड्राफ्टिंग हो जाए, फिर फाइनल करेक्ट फॉर्मेट जो है वो करेक्ट हम इसमें रख करेक्ट सकते करेक्ट हैं, और ये ड्यू करेक्ट। डेट वगैरह उसकी कब हो रही है वो सब गवर्नेंस हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें सर वो क्लॉज कैसे कौन कौन होगी? सा, क्लॉज का जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, जैसे अगर ये वर्कफ्लो कंप्लायंस नहीं है तो इसमें हाँ, अगर आपने कोई, एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ हाँ यस सर। है। तो जैसे आप ये देख रहे हो पूरे लीगल केस का जो हिस्टोरिकल डेटा है कि फाइनेंशियल उसमें एप्लीकेशंस क्या है, और कोई अगर आपने क्लॉज डालना तो क्लॉज कर सकते हैं इसमें, ये कस्टमाइज कर हम्म। सकते हैं आपके लिए, जो कुछ फील्ड आपको जरूरत पड़ेगी वो कस्टमाइज कर सकते हैं उनके लिए। नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए ड्यू डेट वगैरह वो कैसे वो देखेंगे कि ये वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे, कब ड्यू हो रहा है, उसका रिमाइंडर हाँ कब आए? हाँ, जैसे आपने ये वाला नाम देख रहे हो, अब जैसे आप एएमसी हम्म। लैपटॉप डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसकी ड्यू डेट डाल देंगे, इसको एक्सपायरी कब हो रहा है ये वाला, अच्छा। ये मान लीजिए एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर में, तो 31 दिसंबर को एक्सपायर होगा, बेस्ड ऑन रिमाइंडर जो हमने सेट किया, अगर एक महीने पहले का किया हुआ है तो 30 हम्म नवंबर से आपको रिमाइंडर आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम्म। और उसमें पिछले वाले जो तो आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैकिंग वैकिंग का ऑप्शंस है, यू मीन टू से, राइट? सब कुछ है सर इसमें। अच्छा।
90% थिंग्स कैन बी डन, और कस्टमाइजेशन से सर ने जैसे बोला इस पे नेम चेंजेस हैं जो बेसिक कस्टमाइजेशन है वो हम कर लेंगे। वो साथ ही साथ मतलब बहुत बड़ा जॉब हमारे सिस्टम हमने ऐसे बनाया हुआ है इस लाइक ईआरपी सर, तो कुछ भी आप कॉन्फ़िगर आप करवाना चाहोगे फटाफट से हो जाएगा। इसमें हमें कोई कोडिंग भी चाहिए नहीं, जो तो कुछ नहीं पड़ती। ओके। तो सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मतलब कि जो आपको इसमें फीचर मिलेंगे दैट विल बी मच मोर देन ईवाई सॉफ्टवेयर, केपीएमजी सॉफ्टवेयर और जीटी सॉफ्टवेयर। नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ गया। एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरे को एक हाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। इसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट है आपके पास में, तो लॉज वगैरह सारे कवर करते हैं सारे? सारे टोटल सारे सर कितने आपको लॉज वगैरह हैं और कितने वो कुछ है नंबर्स वगैरह? सारे आप मेरे को हमें बस अपना करीब कोई इसके डॉक्यूमेंट कोई इसका शेयर कर पाएंगे, बिल्कुल टोटल बिल्कुल फीचर्स का? बिल्कुल। आफ्टर मीटिंग में आपको सारा डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। हम्म। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाया था, सिंपली एक कंपनी का हमने ये डेमो बनाया हुआ है। इसमें मैं सीएक्सओ कंप्लायंस रिपोर्ट में यहाँ पर अगर डेमो सेलेक्ट करूंगा तो जितने भी जैसे कंपनी में लॉ अप्लीकेबल होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे जैसे सारी आ गई आपके पास। यहाँ पे देखो जैसे करीब कितने 28 लॉ यहाँ पे नजर में आ रहे हैं। तो जितने भी लॉ हम्म। अप्लीकेबल होंगे आपकी कंपनी में वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। सर इसमें एक तीनों मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं देख। अच्छा, यहाँ पर ओके। ठीक है। सर इसमें इंटरनल कंप्लाइंसेस पे आपके हैं, जो आप इंटरनली सर मैनेज करते हैं वो भी इसमें कंप्लाइंसेस हैं। आपका मोबाइल ऐप भी है आई बिलीव, राइट? हाँ मोबाइल ऐप है सर, एक बार सिर्फ इंप्लीमेंट हमको करना पड़ता है वेबसाइट में। गोइंग फॉरवर्ड जैसे वैसे आप एचओडी हो, आप मोबाइल फोन में हमारा दोनों में एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में है, उससे आप मॉनिटर कर सकते हो। सर जो जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की वो भी सर मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकता है। उसमें जैसे उसने जाके डेट सेलेक्ट करनी है, एविडेंस की पिक्चर लेनी है और डन सेव करना है, 30 सेकंड लगते हैं सर पूरा काम करने में। कोई भी तो आदमी ये नहीं बोल सकता मेरा काम बढ़ गया। मेकर चेकर का अगर जरूरत है तो वो कर सकते हैं इसमें? वो सर हम यूजर वाइज भी कर सकते हैं, जैसे वो आपको किसी एक यूजर के लिए करवाना है तो यूजर वाइज हो हम्म। जाएगा वो। पूरी कंपनी में अच्छा, वो इंप्लीमेंट नहीं करना, क्योंकि अगर पूरी कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे तो सिस्टम का अडॉप्शन बड़ा स्लो हो जाता है। ओके। और सर ये प्लेटफॉर्म क्या है आपका? परपेचुअल है, लाइसेंसिंग मॉडल या सैस है? ये SaaS बेस्ड है सर, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। हाँ परपेचुअल नहीं देते हैं? परपेचुअल नहीं है सर, इसमें क्लाउड होस्टिंग है हमारी। कहाँ पर है होस्टिंग? होस्टिंग प्राइमरी होस्टिंग मतलब कि AWS में है और बैकअप Azure में रहता है। उसको हम 6 महीने में स्विच ओवर करते रहते हैं। उसके बाद जो हमने सर्वर लगाए हुए हैं उसके ऊपर हमने ऊपर फायरवॉल भी ली हुई है। उनकी अपनी सिक्योरिटी फीचर तो है ही है, मतलब AWS और Azure की। उसके ऊपर हमने फायरवॉल लिया हुआ है क्लाउडफ्लेयर से। देन उसके बाद डेटा एंड टू एंड ऑन रेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों एनक्रिप्टेड है। और सिर्फ सर्वर्स इंडिया में है, इसमें मुंबई में और चेन्नई में। ठीक है, इसमें कमर्शियल मॉडल क्या है आपका? कमर्शियल मॉडल सर एक बार हम असेसमेंट कर लेते हैं कि मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लीगल एंटिटीज कितनी बनेगी, कितने यूजर्स होंगे, सिर्फ हाँ। 2 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो जो आपने किसी से साथ शेयर की हुई हो वही हमें भेज दीजिए, तो उसके बेसिस में हम वर्कआउट कर लेंगे। नहीं नहीं, मतलब क्या है, पर यूनिट वाइज लेते हैं, पर यूजर वाइज लेते हैं, पर सर इसमें डोमेन लेते हैं? हाँ सर, ये आप जैसे इंटरप्राइज क्लाइंट जैसे आपकी कंपनी है, जैसे कई सारी लीगल एंटिटीज हैं, तो हम्म। उसमें पर एंटिटी और पर यूजर हम नहीं रखते। उसके में हम एक लमसम आपको एक प्राइसिंग वर्कआउट करके देते हैं जिसमें सब कुछ ही कवर हो जाएगा। तो कंप्रहेंसिव है फ्यूचर बेसिकली, हाँ कंप्रहेंसिव पर एनम। कंप्रेहेंसिव पर एनम करेक्ट। तो उसमें 2 और पार्ट होंगे सर। कोई कोई वन टाइम चार्ज भी होता है इसमें? हाँ सर उसमें दो कंपोनेंट होंगे उसका, एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन होगा, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन फीस होगी जो वन टाइम फर्स्ट ईयर की रहेगी, बस हो गया। हाँ, तो एक कंप्रहेंसिव पर एनम हो गया और करेक्ट दूसरा करेक्ट वन टाइम भी हो गया, प्लस वन वन टाइम वन भी हो टाइम गया। करेक्ट करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फीस तो होगी। एंटरप्राइज क्लाइंट के लिए लाइक अस यू डू करेक्ट दैट करेक्ट वे, करेक्ट करेक्ट राइट? सर। और इसमें यूजर का लिमिटेशन है कोई? नहीं सर, वो जैसे इंटरप्राइज क्लाइंट मैंने वो बोला ना आपको, आपके जैसे जो हम वर्कआउट करेंगे उसमें हम्म। अनलिमिटेड यूजर रहेंगे। अनलिमिटेड यूजर है। हाँ, ओके, मतलब ठीक है। हम मतलब उसमें एक मतलब कि एक नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे हम्म। आपने बताया हमारे पास 35 यूजर है, तो हम 50 यूजर उसमें डिफाइन करके रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, अपनी कंपनी प्रोफाइल और ये प्रोडक्ट हाँ की पोर्टफोलियो जो है, डिटेल कोई ठीक डॉक्यूमेंट है, ठीक ठीक है, है चाहे किसी भी फॉर्मेट में, क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो भेज दीजिए, ठीक है इंक्लूडिंग द क्लाइंटेल लिस्ट एंड ऑल। ठीक है। ठीक है सर। और इसको अभी हमारा इवैल्यूएशन चल रहा है,
ठीक ओके है। तो अभी हम स्टेक होल्डर के साथ में इंटरनल डिस्कशन भी कर रहे हैं, ओके वेंडर्स के साथ में भी अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा अभी। ठीक है। एंड राइट जैसे ही मैं इसको एक बार आपका नोट कर लिया पॉइंट, और राइट मुझे ये राइट दे दीजिए, ये रिकॉर्डिंग मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक, ठीक मैं है शेयर कर दूंगा सर, है ना, मैं शेयर ताकि कर दूंगा। मुझे अगर किसी को साथ में दिखाना है, बिल्कुल क्योंकि मैं आईटी से हूँ और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे। करेक्ट एंड करेक्ट आई बिलीव कि ये जो कंप्लायंस वाला है, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के भी और लेबर सर के भी सर सर, सारे सर यहाँ लॉज। पे सारे डिपार्टमेंट, जैसे आप यहाँ पे इसमें दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे तो यहाँ पे ईएचएस का एक डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है। हाँ, EHS, यस। हाँ, तो सब कुछ EHS हो कवर हो गया। जाएगा सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक जो है, कुछ ठीक। होगा 100% विल बी कवर्ड एंड इट विल बी कॉन्फ़िगर्ड एज पर योर डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। कि हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कंप्लीटली मतलब पंचायत टू नेशनल कवर करते हैं। सो जब हम तो इम्प्लीमेंटेशन प्रपोजल, करते हैं तो फाइनल हम ये प्रपोजल एनालिसिस देने के से बाद ही पहले आपको आप सजेस्ट क्या करते हैं। प्रोसेस करते हैं? व्हाट इज द फाइनल प्रपोजल सबमिट करने के लिए आपको कैसे, मतलब यू सर डू वही, सम हाँ सर्वे, तो या बैठ के पहले समझना होगा कि क्या क्या लॉज है, कितनी। सर जब मैं आपको ये डिटेल भेजूंगा, उसके साथ से एक इन्फॉर्मेशन लिस्ट भी भेजूंगा सर। उसमें हम्म सिंपल एक एंटिटीज की डिटेल होगी और नंबर ऑफ यूजर होंगे टेंटेटिव। आप दो चीजें मैं, तो अच्छा, तो कलेक्शन के लिए डेटा के लिए आपको नहीं चाहिए होगा कि कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है कहाँ पे, ऐसा वो कुछ? सर हाँ, वो सर हम आपको सजेस्ट करके देंगे। सिंस अगर आप अच्छा। ऑलरेडी कंप्लाई उसका केबीएमई सिस्टम यूज कर रहे थे, तो इम्प्लीमेंटेशन फास्टर करने के लिए हम वहां से इनपुट ले सकते हैं। नहीं, वो तो सिस्टम से शायद इनपुट नहीं मिल पाएगा कुछ, बट ठीक है, एनी विच वे। तो कोई कोई मतलब जो भी आपका, क्योंकि करेक्ट, आप फाइनल प्रपोजल तो तभी शेयर कर पाएंगे ना, बिल्कुल यू वुड नीड सम इनपुट, राइट? राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो तो अलॉन्ग वो विद क्या लाइक आप, इनपुट चाहिए होंगे वो भी मेंशन करके हाँ आप वो वो शेयर कीजिए। और ठीक आपकी है, कोई चेकलिस्ट है अगर बनी हुई है, कंपेयर एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? राइट राइट ठीक है, कि भी आपका ये यूएसपीज है। ठीक है, तो वो करेक्ट लिस्ट भी जो है, कंपेरेटिव लिस्ट भी आप मुझे शेयर कीजिए। ठीक है। करेक्ट, एंड ठीक ठीक है मैं सर, इसको देखता हूँ, इंटरनली डिस्कस करके देन आई अलाइन अकॉर्डिंगली। करेक्ट ठीक करेक्ट है। सर। बिफोर लाइक क्लोजिंग द कॉल, व्हाट इज योर लाइक फीडबैक, फर्स्ट हैंड फीडबैक अबाउट द हाँ, सिस्टम? नहीं, अच्छा है, इजी टू यूज लग रहा है, आई थिंक। हाँ नो डाउट। बाकी जो हमारे बिजनेस स्टेक होल्डर हैं फ्रॉम ऑल दिस फंक्शन, राइट हमारी राइट, इसमें देखिए, हमारी कंपनी सेक्रेटरी भी, EHS फाइनेंस भी है, ह्यूमन बिल्कुल बिल्कुल रिसोर्स सर, लीगल वाले भी हैं, क्योंकि राइट, IPR वाले भी हैं। हाँ ठीक हाँ है, सर, राइट, सप्लाई चेन वाले भी हैं। सो करेक्ट करेक्ट ऑल दिस स्टेक होल्डर्स, देयर हेड्स विल बी इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन, right? बिल्कुल सर, Rahul Rumtaji is from Inox Wind. Similar, करेक्ट his counterpart from Inox GFL, GFL राइट, Gujarat Fluorochemical Limited will also be there, करेक्ट right? करेक्ट, So इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए बेसिकली। ठीक बिल्कुल सर, है सब ना? सबकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हम तो सिर्फ फैसिलिटेट करा रहे हैं फ्रॉम IT पर्सपेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सर, लेकिन सर आपका कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है टू या मूव फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। या चलिए, थैंक यू जी, थैंक्स, थैंक यू सो मच। या थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपके पास ईमेल आईडी है, मुझे शेयर हाँ कीजिएगा मैं, ये हाँ लिंक, ये हाँ रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ सर। ओके जी, थैंक यू थैंक वेरी मच यू। सर, टेक थैंक यू, केयर, बाय। बाय।